Good morning, students. Today we are doing chapter 6th of our Panorama book, and the name of a chapter is Trouble in Bohemia by Arthur Conan Doyle. A very interesting chapter. If you are interested in detective stories, then of course you'll like this story. And if you are fond of reading books, especially series, then you must detective series, then you must have gone across the novels of Sherlock Holmes. He's a great detective character. It is Sherlock Holmes, you all must have heard. So this is an extract taken from the stories of Sherlock Holmes. So he is known to be one of the most renowned detective of the world, and how once he was fooled by a beautiful young lady is all described in this chapter. So without wasting any time, we start with the chapter. First, we'll read about the author. So, Arthur Conan Doyle was a Scottish writer most noted for creating the legendary world famous fictional character Sherlock Holmes. So, Sherlock Holmes is a fictional character actually. No one existed in reality of a person named Sherlock Holmes, but when we go through the series of novels of Sherlock Holmes, we really feel that he is somewhere there, he is somewhere around us only. He is such a great character to read. And his loyal assistant Dr. Watson. He wrote more than 60 Sherlock Holmes mystery stories which attracted the readers all over the world. Some of the notable Sherlock Holmes works include the stories of Sherlock Holmes, the adventures of Sherlock Holmes, the Hound of Baskervilles, the case book of Sherlock Holmes, and memoirs of Sherlock Holmes. He also wrote many non-fictional books, works of fantasy, science fiction, historical novels and poetry, and also created the fictional character named Professor Challenger and wrote a series of novels based on him. So he has written a great work in the field of writing, the author of this chapter. Now we come and start with the chapter. Please listen to it attentively. Whenever Sherlock Holmes spoke of Irene Adler, it was in terms of great respect. She was always the woman. This did not mean that he was in any way sentimental about her, but throughout his long career, Irene Adler had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. तो ये जो स्टोरी है एक्चुअली में ये हमें नरेट की जा रही है, और जो नरेटर है वो बता रहा है कि शर्लॉक होम्स जब भी आयरन एडलर के बारे में बात करता है तो वो बहुत ही आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात करता है। अब ये मतलब नहीं है कि वो उसको लाइक करता होगा या उसके अंदर कुछ फीलिंग्स है, कुछ सेंटिमेंट्स है उसके प्रति, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका ये मानना है जो आयरन एडलर है वो उन कुछ बहुत रेयर लोग ऐसे हैं जिनको शर्लॉक होम्स अपने इक्विवेलेंट मानता है, अपने बराबर जो है इंटेलिजेंट मानता है, क्लेवर मानता है। तो आयरन एडलर उन कुछ लोगों में से एक औरत है जिसको वो अपने बराबर क्लेवर मानता है। नाउ वी कम टू द स्टोरी। एनीवे आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे। अब एक्चुअली में अभी हमने जब ऊपर अबाउट द ऑथर पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो ऑथर है, जो हमारा ऑथर है, वो उसके दो इमेजिनरी फिक्शनल कैरेक्टर्स, एक शर्लॉक होम्स और एक उसका जो असिस्टेंट है डॉक्टर वॉटसन। तो ये क्या है, जो स्टोरी है वो डॉक्टर वॉटसन जो शर्लॉक होम्स का असिस्टेंट है, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी टाइप में, मतलब वो इस स्टोरी को हमें नरेट कर रहा है, हमें बता रहा है। तो इसको जो राइटर है वो प्रेजेंटली है ना, फिक्शनल फॉर्म के अंदर वो डॉक्टर वॉटसन है। तो डॉक्टर वॉटसन बोल रहे हैं एक बार वो शर्लॉक होम्स के अपार्टमेंट में ही था। Anyway, I was in Holmes' apartment one day when a tall, handsome man dressed in a uniform of a foreign country came to see him. The man wore a mask and pretended to represent a second man, but Holmes soon recognized the man, addressed him as Your Majesty, and the fellow then admitted that he was the King of Bohemia. He had come, he said, to ask Sherlock Holmes' help in a matter of great importance. It seems that 5 years earlier, before he had become the king, he had been in Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Irene Adler. तो एक दिन जब वॉटसन उसके अपार्टमेंट में था, एक आदमी आया जिसने फॉरेन अटायर पहन रखा था और फेस पे एक मास्क भी लगा रखा था, और वो अपना कोई केस लेके शर्लॉक होम्स के पास आया था। एंड एज वी ऑल नो, शर्लॉक होम्स वॉज वेरी क्लेवर। वो बहुत ही जल्दी उसको जो है योर मेजेस्टी कह के बुलाने लगा। अब योर मेजेस्टी हम किसको बोलते हैं, राजा को। अब वॉटसन को समझ में नहीं आया कि ये इसको योर मेजेस्टी क्यों कह रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी उस आदमी ने एडमिट कर लिया था कि वो बोहेमिया का राजा था
और वो एक प्रॉब्लम लेके आया था, और जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि 5 साल पहले जब वो राजा नहीं बना था, व्हेन ही वाज नॉट द किंग, वो वॉर्सो गया था घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, और वहाँ पे उसको एक अमेरिकन एक्ट्रेस आयरन एडलर से प्यार हो गया था। अब वो प्यार उसके लिए कैसे मुसीबत बन रहा है, दैट विल गो थ्रू। I was the crown prince at that time, he explained, and I was young. Shortly after I became king, Iron Adler was not of a royal blood. My family and members of the government found out about the matter of naturally insisted that I must give Miss Adler up. I loved her deeply, but my first responsibility was naturally to my country. अब वो कह रहा है मैं जब क्राउन प्रिंस था मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं राजा बन गया हूँ, और ऑफकोर्स जो वो है वो एक एक्ट्रेस है, उसका जो खून है वो रॉयल नहीं है ना, मैं एक रॉयल ब्लड से बिलोंग करता हूँ, वो रॉयल ब्लड से बिलोंग नहीं करती है। तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स और जितने भी मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सब मुझे कह रहे हैं कि मुझे उसको भूलना पड़ेगा, आई कैन नॉट मैरी हर, है ना। और मेरी जो पूरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे कंट्री की तरफ है, मेरी किंगडम की तरफ है, मेरे प्यार की तरफ नहीं है, तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना चाहता हूँ। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ one of the neighboring countries, and that Erlen Ida, who was still apparently in love with him, had said that she was going to write to the princess and tell her all. अब जो राजा है वो बता रहा है कि अब उसकी जो शादी है वो किसी राजकुमारी, एक पड़ोसी देश की राजकुमारी से होने वाली है, और आयरन एडलर ने उसको धमकी दी है कि वो उस राजकुमारी को हमारे बारे में सब कुछ बता देगी, क्योंकि वो अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इज़ इट मनी मिस्टर एडलर, मिस एडलर वॉन्ट्स आस्क होम्स। और शेरलॉक होम्स पूछ रहा क्या चाहिए उसको, पैसा चाहिए, तुम एक राजा हो, क्या वो तुमसे पैसा इतना चाहती है। हेवंस नो सेड द किंग, शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, शी सिंपली इंसिस्ट दैट शी स्टिल लव्स मी एंड शी रिफ्यूजेज टू लेट मी टू मैरी समवन एल्स। आई सपोज शी हैज़ सम लेटर्स ऑफ योर्स बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, सेड होम्स। अब वो जो राजा कह रहा है मुझे नहीं पता उसे पैसे चाहिए, लेकिन वो ऐसी लड़की तो नहीं है, वो अभी भी ये कह रही है कि वो मुझसे प्यार करती है और वो मेरी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकती है। अब जो शर्लॉक होम्स है वो गेस कर रहा है, इसका मतलब उसके पास तुम्हारे ज़रूर कोई लेटर्स होंगे, तो हम बहुत आसानी से प्रूव कर देंगे कि वो जो लेटर्स है वो फेक है, तो नो प्रॉब्लम। तो जो राजा है वो कह रहा है कि दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, शी ऑल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ। अब वो कह रहा है कि लेकिन जो पेपर्स हैं वो मेरे पर्सनल जो लेटर हेड है उसके ऊपर वो लेटर्स मैंने लिखे थे, और मेरी ही वो हैंड राइटिंग है, और उसके पास मेरी एक फ़ोटो भी है। अनफॉर्चुनेटली शी सेड आई एंड बोथ आर इन द सेम फोटोग्राफ, और वो कह रहा है हम दोनों उस फोटोग्राफ के अंदर हैं। दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट सेट होम्स, हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे। अब वो शेरलॉक होम्स कह रहे हैं ये तो थोड़ा टिपिकल केस हो गया, क्या आपने कोशिश करी कि आप उससे वो फोटोग्राफ निकलवा सकते हो, हैव यू एवर ट्राइड। I have had police examine her apartment, I have had her stopped on the street and also while travelling, but nothing has been found in her pocketbook, in her travelling bags. You see Mr. Holmes, not only is Irene Adler a beautiful woman, but she is clever and highly intelligent as well. अब जो राजा है वो बोल रहा है ऑफकोर्स मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने पुलिस उसके घर पे भेज दी, उसके पूरे घर की चेकिंग करवा ली, उसको कई बार रास्ते में रोक लिया, उसकी पॉकेट बुक, उसका पर्स, उसका लगेज सब कुछ चेक करवा लिया, लेकिन वो फ़ोटोग्राफ और वो लेटर्स कहीं नहीं मिले। और फिर वो एक और बात मिस शेरलॉक को बता रहा है कि मिस एडन एडलर बहुत खूबसूरत हैं, और वो जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट भी हैं और क्लेवर भी हैं। मतलब शी इज़ अ कंप्लीट वुमेन, अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द गुड क्वालिटीज़ one must have. She is a mixture of all those qualities. Holmes obtained all the additional information he could from the king, and the next day left home early. I happened to meet him at the night outside a house just as he was getting home. I did not recognize him naturally because he was disguised as an old cab driver. It seems that he had spent all day in and around Iron Adler's home talking with other cab drivers and with anybody who seemed to know anything about Miss Adler. He has seen her personally and by one means or another had even talked to her.
ठीक है। अब उसको जितनी भी होम्स को राजा से इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी आयरन एडलर के बारे में, उसने वो ले ली और अगले दिन वो सुबह जल्दी निकल गया अपने घर से। और वो शाम को वॉटसन को जब मिला तब वॉटसन ने उसको पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उसने टैक्सी ड्राइवर के कपड़े पहन रखे थे और बूढ़े टैक्सी ड्राइवर के जैसे कपड़े पहन रखे थे। और वो पूरा दिन जो है आयरन एडलर के घर के आसपास टैक्सी ड्राइवर बनकर घूमता रहा और वहाँ पे जितने भी उसको लोग मिले उनको जितनी भी इन्फॉर्मेशन आयरन एडलर के बारे में मिल सकती थी उसने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी ली। और प्लस उसने एक बार मौका देख के किसी बहाने से उससे बात भी कर ली थी। She is all that kind king says she is and more, he said. She is a beautiful woman. I also discovered a surprising fact that Iron Adler got married at 5 o'clock today to Mr. Godfrey Norton, previously a lawyer. I do not know whether this makes the matter more simple or more complicated, although she herself is an honorable person who knows what advantages her husband, a lawyer, may see in the photograph of her and the King of Bohemia taken together. We must get the photograph by all means. I am sure the photograph is in her home, and tomorrow, Watson, you must help me to go there and get it. अब वो कह रहा है कि मैंने उसके बारे में बहुत चीज़ें मुझे पता चली, जैसा राजा ने कहा था वो सच में बहुत सुंदर है और बहुत समझदार है। लेकिन मुझे एक और बात पता चली कि आज शाम को 5 बजे ही उसने शादी कर ली। और शादी किससे करी उसने? जो उसका लॉयर था, है ना। और अब क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उस फोटोग्राफ का उसकी लाइफ में, अब उसने शादी कर लिया तो ऑफकोर्स वो राजा को प्यार अब थोड़ी करेगी, उतना अपने हस्बैंड को ही करेगी। लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो लॉयर है उस, और राजा की फ़ोटो उसके साथ है, तो लॉयर हस्बैंड उससे बहुत कुछ ले सकता है। अब वो उसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम नहीं जानते, तो हमें एनी हाउ वो जो फ़ोटोग्राफ है उससे निकलवानी पड़ेगी। कल हम इसको अंजाम देंगे और तुमको मेरी हेल्प जो है वो करनी पड़ेगी। While Holmes was telling me this, we stood in front door. A young man in a long overcoat passed the street. "Good night, Sherlock Holmes," said the young man. वो कह रहा है जब हम इस सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे और शर्लॉक होम्स ने एक टैक्सी ड्राइवर का अटायर ले रखा है, उसको कोई भी, उसका असिस्टेंट भी उसको नहीं पहचान पा रहा है। इतने में वहाँ से एक यंग लड़का जिसने बड़ा सा ओवरकोट पहन रखा है वो वहाँ से क्रॉस कर रहा है और वो उसको बोल रहा है, "गुड नाइट शर्लॉक होम्स." Now who the devil could have recognized me in this disguise, said Holmes. That voice also sounds familiar. वो कह रहे हैं कि किसने मुझे पहचान लिया इन कपड़ों के अंदर, और ये जो आवाज़ है ये भी मुझे जानी पहचानी लग रही है। Anyway, the next day 5 o'clock in afternoon, Mr. Holmes, now disguised as a priest, was walking in front of Iron Adler's home when Miss Adler arrived from her daily ride in the park. As she stepped out of a cab, Holmes pretended to faint. Several people came to help him, and Miss Adler finally told him to carry him into her living room. As Holmes had directed, I stood waiting during all this time in the garden just outside the living room window, and as the signal from Holmes inside, I threw some lighted pieces of paper into the room through the window. There was a cry of "Fire, fire" from one of the servants, and then I disappeared. Several hours later, Holmes arrived home quite pleased with himself and with the satisfactory way everything had turned out. अब अगले दिन दोपहर के टाइम में जब इसको पता था कि मिस एडलर कितने बजे जाते कितने बजे आते, जब उनका वॉक करके आने का टाइम था, उस टाइम में ये प्रीस्ट के कपड़े पहन के, है ना, एक प्रीस्ट के कपड़े पहनकर जो वहाँ पर आता है, और जैसे ही ये मिस एडलर अपनी कैब से नीचे उतरती हैं ये वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करता है और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं इसकी हेल्प करने के लिए। और तभी मिस एडलर जो वो कहते हैं कि इनको मेरे लिविंग रूम में ले जाओ, इनको थोड़ा रेस्ट करा दिया करें। और जो वॉटसन है वो लिविंग रूम के बाहर जो गार्डन है उसमें सिग्नल का वेट कर रहा होता है। जैसे ही ये सिग्नल देता है वो कुछ जले हुए पेपर्स उनके ड्राइंग विंडो से अंदर फेंक देता है और हर तरफ जो एक शोर आता है, आग आग आग, ठीक है। और वो वहाँ से चला जाता है और शाम को काफ़ी लेट जो है ये है वापस आता है शर्लॉक होम्स, और एक बहुत सेटिस्फाइड होता है कि जो इसने चाहा था वो हो गया, ठीक है। "It is an old trick, Watson," he said, "but it worked just as I expected. When someone cried fire, Iron Adler ran almost automatically to get the one thing of greatest importance in the house, the photograph. It is hidden in a secret place in one of the walls. She did not remove the photograph because when she saw that the fire was only a matter of few burning papers, she stopped, but she did all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden. Tomorrow we shall go there with the king and with several policemen and get the photograph." अब वो कह रहा है
कि एरन एडलर ऑफकोर्स जब घर में कभी भी आग लगेगी तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब उसको आग सुनी तो ऑफकोर्स उसके घर में सबसे इंपॉर्टेंट वो फोटोग्राफ थी। उसने वॉल के अंदर एक सीक्रेट प्लेस के अंदर उसको छुपा रखा था, लेकिन उसने वो वहाँ से नहीं हटाई जब उसको पता चला कि जो पेपर ही थोड़े से जले थे और बड़ी आग नहीं लगी है। कल हम राजा और खूब सारे पुलिसमैन के साथ जाएंगे और वो फोटोग्राफ जो है वो वहाँ से ले लेंगे। The next day, however, when Holmes went to Miss Adler's house, he had one of the greatest shocks. ठीक है, अगले दिन जब होम्स उसके घर जाता है तो उसको बहुत बड़ा शॉक मिलता है। क्या शॉक मिलता है उसको? There was no one at home. Miss Adler, all her servants had apparently gone away. Holmes went at once to the secret place in the wall. The photograph was there, but there was a message with it. अब वहाँ पे घर पे कोई भी नहीं होता, ना कोई नौकर, ना मिस होम्स, ना उसका हस्बैंड, कोई भी नहीं होता। तो वो फटाफट एरन एडलर भी नहीं होती है, वो वहाँ जाता है फटाफट, और वो फटाफट उसी जगह जाता है जहाँ फोटोग्राफ होती है। वो देखता है फोटोग्राफ वहाँ पर थी, फोटोग्राफ अभी भी वहीं पे थी, लेकिन उसके साथ में एक मैसेज भी था। अब वो मैसेज क्या था? वो मैसेज था, डियर शर्लॉक होम्स। एरन एडलर ने शर्लॉक होम्स के लिए एक लेटर लेके छोड़ा था। I had been told that the king would probably go to you for help getting the photograph. वो कहता मुझे पता है राजा ने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए थे, उसको फोटोग्राफ नहीं मिला था, तो मुझे पता था क्योंकि आप इतने बड़े डिटेक्टिव हो, आपका इतना नाम है, तो राजा ज़रूर आपको अप्रोच करेगा, आप तक जाएगा। Thus I was expecting you any day. इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर थी कि आप कभी ना कभी तो आओगे। First I recognized you, your disguise as a cab driver, and then followed you to your apartment just to make sure it was you. वो कह रहा है कि मैंने पहचान लिया था जब आप टैक्सी ड्राइवर के डिस्गाइज के अंदर आए थे, और मैं मतलब अपनी उस पहचान को है ना श्योरिटी करने के लिए मैं तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे घर तक गई थी। आई वॉज द वन यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट। वो कह रहा है वो यंग मैन जो तुमको उस रास्ते में टकराया था रात को उस दिन, वो मैं ही थी। डोंट फॉरगेट दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट। वो कह रहा है अगर तुम एक डिटेक्टिव हो तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ। येस्टरडे आई ऑल्सो रिकग्नाइज योर लिटिल ट्रिक ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू माई हाउस। वो कह रहा है और कल भी जब तुम प्रीस्ट के टायर के अंदर आए थे तो मेरे घर के अंदर दाखिल होना चाहते थे, मैं वो भी समझ गई थी। एंड फोर्सिंग मी टू शो यू वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन। और आज तुमने मुझे कहीं ना कहीं फोर्स करा कि मैं बताऊँ फोटोग्राफ कहाँ है। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, द फोटोग्राफ इज़ हियर फॉर यू। आई एम मैरिड नाउ एंड टू अ मैन मच बेटर देन द किंग। वी हैव गॉन अवे टुगेदर। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली एंड आई एम इन लव विद हिम। क्लियरली आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर। वो बोल रहा मुझे इस फोटोग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेरी शादी उस राजा से 1000 गुना बेटर आदमी से हो गई है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दूर जा रहे हैं और ये फ़ोटोग्राफ तुम्हारे लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो मतलब वो डिटेक्टिव ना होकर भी डिटेक्टिव से बड़ी डिटेक्टिव निकली, है ना। योर्स ट्रूली एरन एडलर। Now about the story Trouble in Bohemia is about Sherlock Holmes and Miss Erin Adler, both fictional characters created by Arthur Conan Doyle. The story narrates how the King of Bohemia hires the famous detective Sherlock Holmes to get some letters and photograph back from Miss Adler, but Miss Adler beats Sherlock Holmes at his own game. So I hope the chapter is clear and interesting also. Have a good day all of you.